हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू नंबर 1 द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके का था। The central nervous system includes the brain and the spinal cord. And I guess we have gathered plenty of information regarding the brain and the spinal cord. Brain और spinal cord ऐसे दो organ हैं which are attached and they are centrally placed. They are placed along the axis of the human body. Peripheral nervous system के बारे में बात करें तो it comprises of all the nerve fibers, a network of nerve fibers which are associated to the central nervous system. That is, it is made up of the afferent nerve fibers and the efferent nerve fibers. हमारा centrally placed क्या हो गया? The central nervous system, that is the brain and the spinal cord. और edges पे या internally placed क्या हो गया? The receptor and the effector. तो अगर ये हमारा CNS है और यहाँ पे हमारे receptor, that is the sense organ which are responsible for perceiving the stimulus, और effectors हो गए, effectors that work according to the orders given by the central nervous system. तो ये दोनों के बीच में जो network पाया जाता है, ये जो network हो गया, the network of nerve fibers, the network of nerve fibers, that is the afferent and the efferent nerve fibers makes up the peripheral nervous system. Now the peripheral nervous system can be further classified into two distinct systems. Number 1 is the somatic nervous system and number 2 is the autonomic nervous system, जिसके बारे में हमें इस सेक्शन में पढ़ना है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम इस क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके, बट बिफोर diving into the autonomic nervous system, I thought that we should better take a recap of what we have studied in our previous video, so that it becomes more and more clear to you when I'll be talking about the autonomic nervous system. तो हमारा जो somatic nervous system हो गया, it comprises or it is made up of those nerve fibers which are responsible for carrying the impulses or transmitting the impulses from the central nervous system to the skeletal muscles. हमारे skeletal muscles क्या हो गए? Skeletal muscles are the striped or the striated muscles which are attached to the bones and they work under our will. That is, they work under or they are under the voluntary control. तो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम उन नर्व फाइबर से बना है जिसका काम क्या होता है? टू कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द CNS to the skeletal muscles or to the muscles which are attached to the bones in order to bring about the movement. And what kind of a movement? Which is under our will. अगर हम अपने autonomic nervous system की बात करें, it is made up of those nerve fibers which are responsible for carrying the impulses from the central nervous system to the smooth muscles. एक का काम है उस इफेक्टर से जोड़ना which is skeletal muscles. तो somatic nervous system में the effector is the skeletal muscle. और अगर हम autonomic nervous system की बात करें तो यहाँ पे हमारा effector होगा that will be the smooth muscles. Smooth muscles क्या हो गया हमारा? Smooth muscles. Smooth muscles क्या हो गए?
the non-strict or the non-striated, or the non-striated muscles, and they are found located in the hollow spaces of the internal or the visceral organs. जो hollow space होता है, जो hollow surface, जो surface होता है of the hollow organs. I'm so sorry. Let me rectify my statement. They are found located on the walls of the hollow organs. For example, stomach. Internally क्या है? It's hollow. There is a space. तो उस hollow organ का जो wall है, the wall that will be surrounding that hollow space, वहीं पे हमारे smooth muscles पाए जाएंगे. So they are responsible for receiving the impulse which is being brought down from the central nervous system by the nerve fibers which makes up the autonomic nervous system. तो ये एक बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन एंड रिगार्डिंग द फंक्शंस दैट मेक्स अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और द सोमैटिक नर्वस सिस्टम और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी अभी हमने जो भी पढ़ा. इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी बेसिक. सो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा और समझेंगे और फिर इसके डिस्टिंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो चलिए अब हम अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सो व्हाट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट कंप्राइजेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स और द नर्व फाइबर्स और द गैंग्लियाज दैट कैरी द impulses from the central nervous system to the viscera. अब भाई हमारा ये विसरा क्या हो जाता है? विसरा कुछ भी नहीं होता है. विसरा सिंपली द इंटरनल ऑर्गन्स. हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि दे आर कनेक्टेड टू दोज स्मूथ मसल्स विच आर फाउंड लोकेटेड on the walls of the hollow organs like the stomach or any of the liver, any of the organ that comprises that hollow space within it. तो उसका जो wall हो गया that surround that hollow space is made up of smooth muscles. तो हमारे जो viscera हो गए या हमारे जो internal organs हो गए, उनका जो walls हो जाएगा, the free walls of the internal organs. Now these free walls basically surround the hollow space. Of these internal organs. वहीं पे हमारा जाके impulse को छोड़ दिया जाता है. So जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, इट इज मेड अप ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर्स जिनका काम क्या होता है, टू ट्रांसमिट और टू कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू ऑल द विसरल ऑर्गन्स. तो ये देख के हमें समझ में आ रहा है. अब जैसे कि विसरा है तो विसरा आर द इंटरनल ऑर्गन्स. तो इस विसरल टर्म की वजह से हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम. तो अगर पूछा जाए कि इससे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को विसरल नर्वस सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका काम क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ दोज नर्व फाइबर्स दैट कैरी द इम्पल्स. बेसिकली इनका काम क्या होता है, टू कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इनको कहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देना होता है, टू द विसरा ऑफ द बॉडी. तो बेसिकली इनका काम क्या हो गया, इट कंट्रोल्स the activities inside the
बॉडी या जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हो गए, उनके एक्टिविटीज को संभालने का ये काम करता है और उसमें एक काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन और काइंड ऑफ अ वर्किंग को इंड्यूस करता है। और वो पर्टिकुलर रिएक्शन और रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस होता है? व्हेन इट रिसीव्स द इम्पल्स व्हिच इज बीइंग ब्रॉट डाउन फ्रॉम द सीएनएस टू द वॉल्स ऑफ द विसरा। तो ये हमारा हो गया एक क्विक introduction or information regarding what is a autonomic nervous system. So let me first clear this mess and then we'll be talking about its two distinction, that is the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. तो इसकी भी अब हम बात करेंगे. So the autonomic nervous system has two divisions. The first division is the sympathetic nervous system and the second division is the parasympathetic nervous system. तो हमारा autonomic nervous system has two divisions. तो पहला हमारा हो गया sympathetic nervous system and second is the parasympathetic nervous system. तो ये तो ऑलरेडी क्लियर होगा आप लोगों को कि it is made up of एक जाल होता है nerve fibers का which is found inside the body, जिसका काम होता है just to carry the impulse from the CNS to the different viscera or to the different internal organs. तो ये जो हमारा sympathetic nervous system होता है, इसका काम क्या होता है? तो they are related to those response which increase the protection of the body during adverse condition or during the times of emergencies. तो उस टाइम हमारा जो sympathetic nervous system है और the network of or the complex of nerve fibers get activated or they get stimulated just to protect the body against that difficult situation or during those situations of emergencies. तो उस टाइम ये जो हमारा sympathetic nervous system होता है it gets activated in order to perform its function. तो इनके activation से generally there is a loss of energy. For example, एक बहुत सिंपल सा मैं उदाहरण लूँगी यहाँ पे. फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है जो अंधेरी रात में अकेले एक सुनसान सड़क पर जा रहा है. सो ऑल फॉर द सडन चलते चलते क्या होता है, उसे अंधेरे में एक शैडो नज़र आता है पेड़ के पीछे. तो अंधेरा है, रास्ता एकदम सुनसान है, कोई भी नहीं है उसके साथ, वो अकेले जा रहा है. तो जब वो पेड़ के पीछे एक काइंड ऑफ ब्लैक शैडो इज़ बेसिकली ब्लैक ओनली, वो शैडो को जब वो देखता है तो बीइंग अ ह्यूमन उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? वो डरेगा, वो बिल्कुल डरेगा, वो सहम जाएगा और उसके जो प्यूपल्स होंगे दे आर गोना डायलेट. अब अंधेरी रात है, क्या है? देयर इज डार्कनेस. तो डार्कनेस में थोड़ा सा विजिबिलिटी इंसानों का क्या हो जाता है? लो हो जाता है. स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, गेस एक दो होगी और एक दो बंद होगी. तो जब वो शैडो पे फॉर द फर्स्ट टाइम उसका नज़र पड़ा तो उसके प्यूपल्स क्या हो गए? डायलेट. क्यों हो गए? जस्ट टू अलाउ मोर लाइट, मोर अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर हिज आइज. तो जब आँखों में ज़्यादा लाइट, ज़्यादा प्यूपल के डायलेशन से उसका स्पेस बढ़ेगा, ज़्यादा लाइट एंटर होगा और ज़्यादा लाइट एंटर होने से क्या होगा? ही माइट बी गेटिंग a better information regarding that shadow through his visual senses, ताकि वो पता लगा पाए कि कहीं भाई वो शैडो किसी गोस्ट का तो नहीं है या किसी एक नॉर्मल इंसान का तो शैडो नहीं है. जस्ट टू ड्रॉ दैट डिस्टिंक्शन कि वो खतरे वाली बात है कि नहीं. तो भाई उस अंधेरे में जब उस इंसान ने शैडो देखा तो प्यूपल का डायलेशन ऑल फॉर द सडन हुआ. और ये प्यूपल का डायलेशन किसने कंट्रोल किया? हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने. इसीलिए किया क्योंकि इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी.
तो भाई उस शैडो के रिगार्डिंग एक इंसान को एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तभी तो वो एक एनालिसिस या कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएगा कि भाई खतरे वाली बात है, और खतरे वाली बात है तो मैं भागूँ या ना भागूँ। तो उस सिचुएशन में हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया, ताकि हमारे बॉडी को रिगार्डिंग दैट एनकाउंटर एक सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए, एंड अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू शो अ काइंड ऑफ एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो भाई ये बेसिक और बहुत सरल सा काम हो गया हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो अगर वो सही में एक शैडो है गोस्ट का, तो दैट पर्सन गोना रन फॉर हिज लाइफ, और रनिंग के लिए ही नीड दैट एनर्जी इन हिज लिम्स। तो इंसान जब भागेगा तो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये एक बहुत सिंपल सा कनेक्शन हो गया रिगार्डिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जस्ट दी ऑपोजिट। तो दे आर रिलेटेड टू दोज रिस्पॉन्सेज where the energy is conserved, मतलब they get activated during normal condition where the conditions are not adverse, or during non-emergency situation, कोई भी खतरे वाली बात नहीं है, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी फंक्शनिंग, या नॉन इमरजेंसी सिचुएशन हो गया। तो बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटागोनिस्टिक मतलब इनके फंक्शन क्या है? जस्ट दी ऑपोजिट। एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट। तो sympathetic nervous system will get excited, or it's gonna get activated during any of the emergency situation just to protect our body against that adverse condition. Whereas if talking about the parasympathetic nervous system, इसका काम होता है just to restore the function, just to restore the response which is being produced on the activation of the sympathetic nervous system. तो parasympathetic nervous system का काम क्या होता है? Just to restore the response produced by the sympathetic nervous system. भाई अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ना रहे बॉडी में, इसका कोई नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर ना रहे एक सेपरेट बॉडी के अंदर, तो भाई एक बार अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम वो एक्टिवेटेड ही रह जाएगा। तो अगर हमारा कंडीशन नॉर्मल भी है तो हम लोग रनिंग ही स्टेट में हैं। सो द पीपल हु इज सराउंडिंग अस, दे गोना लाफ एट अस कि हम लोग करना क्या जा रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई चीज़ एक्साइटेड हो रही है तो उसको दबाने के लिए या उसको नॉर्मल कंडीशन पे रिस्टोर करने के लिए देयर शुड बी अ काइंड ऑफ अ सिस्टम विच वर्क्स just the opposite of the former one. तो ये एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हो गया रिगार्डिंग सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक विल बी एक्टिवेटिंग the function of the body just to bring about that protection against that difficult situation or adverse condition, whereas if talking about the parasympathetic nervous system, it's just going to restore the response or kind of a reaction or excitation which is being brought down by the activation of the sympathetic nervous system, and so they are just the antagonistic to one another. So itna I guess is more than enough for this chapter. एक चार्ट है, that chart will be depicting a kind of a distinction between the response which is showed by different organs of the human body when controlled by the sympathetic nervous system and when controlled by the parasympathetic nervous system. तो उसका मैं एक image I'm gonna display it by the very end of this video, और मुझे लगता है वो it is very very प्रैक्टिकली वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर प्रैक्टिकली आप उसे समझने की कोशिश करें तो वो बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है। तो आप उसे देखेंगे, आप उसे समझ पाएंगे, एंड देन यू जस्ट हैव टू यू पीपल हैव टू मक दैट थिंग अप।
just for the sake of your examination. So इतना काफ़ी है.